आंदोलनकारी गन्ना किसानों की पंजाब सरकार और चीनी मिल मालिकों के साथ वार्ता विफल हो गई है। किसान गन्ना के 400 रुपए क्विंटल भाव की मांग कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री सुखविंदर रंधावा इस मूल्य को देने से इनकार कर दिया है। अभी पिछले सप्ताह ही सरकार ने 15 रुपए क्विंटल भाव बढ़ाए हैं। पंजाब में गन्ने का भाव 350 रुपए है। बैठक में मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलवाया कि गन्ने का बकाया प्राइवेट मिल वाले 15 दिनों में उसका भुगतान कर देंगे। सहकारी मिलें एक सप्ताह में इसका भुगतान कर देंगी। बैठक में किसान यूनियन के नुमाइंदे और शुगर मिल मालिक मौजूद थे। बैठक के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की और कहा कि बैठक में नतीजा रही है। किसानों का कहना है कि किसानों की लागत 388 रुपये बनती है, सरकार इसे अभी नहीं मान रही है। किसान संगठन और सरकार के एक्सपर्ट की जालंधर में बैठक होगी। डल्लेवाल ने आगे कहा है कि धरना जारी रहेगा। अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो पूरे पंजाब की सड़कें जाम की जाएंगी। डल्लेवाला ने आगे कहा कि किसानों के बकाया 200 करोड़ का फैसला हो गया है। प्राइवेट मिलें 15 दिन के भीतर और सहकारी मिलें सितंबर के पहले सप्ताह में इसका भुगतान कर देंगी। साडी मंग है किसानों की वो ये है कि किसान के लागत खर्चे के उपर इनू इहदा रेट मिलना चाहिए। और जो लागत खर्चे की गल आई है तो सरकार बड़े लागत खर्चे घट शो कर रही है, जो कि एक्चुअली लागत खर्चे किसान के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उहदे ते बहस हुई है, उहदे ते एक विचार होनी है। कल नूं इन्हां दे एक्सपर्ट यूनीवर्सिटी के एक्सपर्ट वो साडे नाल जलंधर दे विच बैठणगे और उत्थे उन्हां दी तसल्ली करावांगे, जिवें दिल्ली दे विच करा के आए सी। और कल नूं तसल्ली करा देंगे इन्हां दी कि लागत खर्चा की बनदा किसान दा। उस तो बाद फिर उहदे उत्ते भाव लैण दी गल जिहड़ी उस तो बाद है। अंदोलन उन्ना चਿਰ ਜਿਉਂਦੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ बकाया राशि ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਵੀਕ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 388 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਪੈਣਾ ਹਜੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿੰਗਣਾ ਘੋਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਅਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ 3:30 ਵਜੇ ਸਰ। ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਦਲਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ? ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ 55 ਕਰੋੜ ਹੈ, 55 ਕਰੋੜ ਤੇ 145 ਤੇ ਦੂਜਾ 145 ਕਰੋੜ ਟੋਟਲ ਯਾਨੀ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ 200 ਕਰੋੜ ਟੋਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਖੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹ ਵਿਦਨ 15 दिन। मीटिंग में क्या हल निकला, कुछ फैसला हो पाया है? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹਨੇ 350 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 350 ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਪਲੱਸ 50 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੀ ਪਲੱਸ 100 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 392 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਹੈ ਜੋ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। परसों सीएम मीटिंग इतने लेंगे। सर आज बकाया राशि को लेकर भी कोई फैसला हुआ है? राशि तो उन्होंने अनाउंस किया कि जो सहकारी मिलना वाली है वो सितंबर के पहले हफ्ते बाद 2-3 तरीक तक
ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। तो फिर धरना की सर क्या तब तक चलता रहेगा? ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪੌਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਮੰਨਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਦੱਸੋ ਔਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਕੱਲ੍ਹ 3:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ 43 ਕਰੋੜ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ। मेरे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार जुड़े हुए हैं, उनसे इस खबर पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अमित, लगातार किसानों की नाराजगी सामने आ रही है और अब जिस तरीके से किसानों ने कहा कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा क्योंकि सरकार हर बार बेनतीजा ही वार्ता कर रही है, वो हमारी बातों को, हमारी बताई लागत को स्वीकार नहीं करना चाहती है, वो गलत लागत को प्रस्तुत कर रही है। देखिए कहीं ना जो किसान अपनी एक अड़ी पे आ चुके हैं। किसान अब आंदोलन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से जहां वो पहले अपनी डिमांड के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, बात कर रहे थे और पर उनको कहीं सुना नहीं जा रहा था। और उसके बाद फाइनली उन्होंने जब लुधियाना जालंधर हाईवे ब्लॉक किया है और उसके बाद जब पूरी तरह से एक हाईवे ब्लॉक किया है तब जाके सरकार दोबारा बातचीत पे आई है। कहीं ना कहीं पहले भी जब ये बातचीत की जा रही थी तो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते चले गए थे, ज्यादातर किसान दिल्ली चले गए थे, पर वापस किसान आ चुके हैं। कहीं ना कहीं सरकार से अगर हम बात है अपनी बात मनवाने को लेकर अड़ चुके हैं। जैसे आप देखिए मीटिंग हुई है, मीटिंग दूसरी बारी मीटिंग हो रही है, इसमें डिस्कशंस क्या किया है? इसमें रेट को लेकर डिस्कशन है कि जो रेट दिए जा रहे हैं गन्ना किसानों को वो बहुत कम दिए जा रहे हैं। दूसरा जो बकाया राशि है उसको देकर काफी नहीं, और उसके बाद जो फाइनली तीसरी थी वो है कि उनके ऊपर जो बकाया राशि है उसके ऊपर क्या ब्याज मिलेगा या नहीं, उन सब चीजों को लेकर डिस्कशन हो रही थी। कल की मीटिंग में एक चीज जो अगर कह सकते हैं कि फाइनली डिसाइड हुई थी वो थी कि जो 200 करोड़ बकाया है वो एटलीस्ट क्लियर कर दिए जाएंगे 15 दिन के अंदर प्राइवेट मिलों के लिए, और बाकी की जो कॉपरेटिव्स हैं उनके सितंबर के पहले हफ्ते में। तो अब बाकी रह गया था कि वो है जो गन्ने के रेट दिए जा रहे हैं पर क्विंटल, जो सरकार की तरफ से रेट दिया जाता था, पहले दिया जा रहा था 315, जिसे बढ़ाकर 325 कर दिया गया था। और उसके फाइनली जब किसान अपने रेट लेके गए तो उन्होंने बताया कि करीब 400 के करीब कहीं लागत आ रही है, तो जिसको सरकार कहती है नकार देती है। उन्होंने आज जालंधर में एक मीटिंग रखी है जिसमें अपने सारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होंगे और किसान होंगे, सारे मिलकर बैठेंगे, हर एक फैक्टर को डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि एक फैक्टर जैसे ना हम एग्जांपल दी थी कि जहां सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें रेट्स में, जो खाद की रेट लगाई गई थी वो करीब 200 से 300 रुपए लगाई गई थी, तो वहीं जब किसान बता रहे हैं तो वही चीज 2000 रुपए के करीब लग रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मतलब 10 गुने की डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है। तो यही सब चीजें डिस्कस होंगी, यही सब चीजों की और बातें की जाएंगी और शायद आज कोई एक नया रेट सामने आ सके। अब ये भी डिपेंड करता है जो नया रेट आता है क्या वो किसानों को मंजूर होगा या नहीं, ये भी एक फैक्टर है। क्योंकि अगर वो किसानों को मंजूर नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन लंबा चल सकता है। और देखिए जितना लंबा ये प्रदर्शन चलेगा उतना ज्यादा लोगों को ही दिक्कत आएगी, क्योंकि देखिए फगवाड़ा की तरफ से रोड बंद हो चुका है, जालंधर की तरफ आप नहीं जा सकते, बहुत लंबा रूट लेना पड़ेगा, वहीं जालंधर से आप कहीं और मूव इजिली नहीं कर सकते। लंबा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है किसानों की तरफ से, पर कहीं ना कहीं किसान इस मामले में अड़े हुए हैं कि ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। बहुत हो गया आश्वासन, बहुत हो गई मीटिंगें लगातार होती रहती हैं, उनसे हमें कोई जवाब नहीं मिला। अब जवाब लेकर अपनी बात मनवा कर ही किसान पीछे हटेंगे, उनका कहना है।
बिल्कुल, अमित एक और चीज़ जो है समझने वाली है, क्योंकि किसान नेताओं का कहना है कि अगर अब जिस तरीके से किसान नेता ने कहा कि जटा के हिसाब से अगर मैं बात करूँ कि अभी तो मैं एक मोटा-मोटा हिसाब बता रहा हूँ कि 388 रुपए हमारी लागत आती है, उस पर अभी हमने ब्याज नहीं जोड़ा है। तो सरकार किन आंकड़ों के हिसाब से गिनती कर रही है? क्योंकि किसान तो अपने पूरा हिसाब बता रहे हैं कि इस हिसाब से लागत आ रही है, सरकार हिसाब अलग कैसे बता रही है फिर? देखिए, यही बात डिस्कस करने वाली है, क्योंकि कुछ जैसे कोऑपरेटिव मिनिस्टर सुखजिंदर रंधावा ने बताया कि इसमें किसानों को इंक्लूड नहीं किया गया था। जब रेट्स लिखे गए थे, जब रेट्स बताए गए थे, जो फाइनली लिखे, तो उसमें इनको नहीं, किसानों को नहीं, खुद एग्रीकल्चर साइंटिस्ट क्या जो ऑफिशियल डाटा आता है, कि ऑफिशियल रेट्स जो इनके पास हैं, जो सरकारी रेट्स हैं, उन सबको कंसिडर किया जाता है। वहीं हर जगह ऑफिशियल रेट्स नहीं चलते हैं, जैसे हमें पता है कि रियल लाइफ में रेट्स बहुत फ़र्क कर सकते हैं। तो उन सबको है कि कई बार रेट जो उनके पास होते हैं, साइंटिस्ट के पास, जिन्होंने रेट कंप्यूट किए हैं, वो पुराने भी हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को कंसिडर करके उन्होंने बोला कि उस वक़्त किसी किसान को, खुद सुखजिंदर रंधावा ने इसे मानना भी है कि ये गलती होगी कि किसानों को रेट कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया गया। क्योंकि रेट को उनको इंक्लूड किया जाता तो रेट शायद और ज़्यादा बढ़ के निकल सकता था और शायद आज ही सहमति बन जाती। पर अब बात ये है कि आज जलंधर में मीटिंग होगी, इन्हीं रेट्स को लेके 3:30 बजे करीब इसमें सारी डिस्कशन होगी और नए रेट सामने आएँगे और वहीं कल सीएम के साथ भी मीटिंग हो सकती है, जैसे बताई जा रही है कि खुद सुखजिंदर रंधावा बोल चुके हैं कि आज रेट डिसाइड होगा, कल मीटिंग की जाएगी जिसमें खुद वो दोबारा बैठेंगे और शायद शायद पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर साथ भी इन किसानों की मीटिंग करा सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा ये आंदोलन चलेगा, उतना ही ज़्यादा पंजाब के लोगों को ही दिक्कत आएगी। और जैसे-जैसे आपको बताइए कि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, लंबे-लंबे प्रोटेस्ट किसानों के द्वारा सरकार की इमेज के लिए अच्छे नहीं है। तो सरकार भी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ये सभी जितने भी प्रोटेस्ट है उन्हें हल किया जाए ताकि उनकी इमेज बचाई जा सके। बिल्कुल, अमित यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो डेटा जिन्होंने प्राइसिंग डिसाइड की है, उनके पास जो डेटा मार्केट का दिया गया, वो मार्केट प्राइस से बिल्कुल इतर सामान जो है किसानों को मिलता है और ये ज़मीनी स्तर की हकीकत है। और कहीं न कहीं इन मीटिंग्स के दरमियान किसानों ने इस बात को भी रखा होगा कि जनाब आपके पास जो डेटा आता है या आपको जो चीज़ 300-400 को बता दी जाती है, वो हमें 800-900 रुपए की खरीदनी पड़ती है, इसलिए आज हम आपको लागत में फ़र्क बता रहे हैं। तो क्या इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा? इस पर भी कोई फैसला होगा कि जो लागत मंत्रियों के पास जाती है या एक्सपर्ट्स के पास जाती है, वही लागत किसानों को भी मिल पाए? देखिए, यही चीज़ डिस्कस की गई थी। खुद जैसे आपने बताया, हमने कि पहले ही जब मीटिंग डिस्कस हुई थी, एक सीधी-सीधी बात उठाई कि जो रेट कंप्यूट किया गया है खाद का, वो 200 रुपए के करीब कहीं कंप्यूट किया गया था। वहीं इनके पास जो किसानों को एक्चुअल में मिलती है, वो 2000 के करीब मिलती है। तो एक तरह से 10 गुना का फ़र्क है। मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर रेट को हिलाने में यही अकेली चीज़ काफ़ी हो सकती थी। तो वही है कि काफ़ी चीज़ें होती हैं, कई चीज़ों का रेट ज़्यादा भी हो सकता है सरकार के पास, कई चीज़ों का रेट कम भी हो सकता है। पर अब जो नॉर्मली हम लोग हर चीज़ कंसीडर करते हैं, ज़्यादातर रेट या तो पुराना होता है, क्योंकि जब कंपटीशन शुरू होती है, तो वो 2-3 साल पहले शुरू होती है और जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, वो रेट 3 साल पुराने हो चुके होते हैं। तो अब कोरोना का भी हम कंसीडर करें फैक्टर, तो बहुत कुछ महँगा हो चुका है, चाहे तेल की बात कर लें, पेट्रोल, डीज़ल, इन सबको भी कंसीडर करना होगा। कहीं न कहीं मोटर भी चलती है, तो डीज़ल के रेट को भी फैक्टर इन करना पड़ता है। तो कई चीज़ें हैं, वो अब डिस्कस होगा, आज उनके ऊपर बातचीत की जाएगी कि आखिर क्यों? और हाँ, सुखजिंदर रंधावा खुद इस चीज़ पे बोल चुके हैं कि हमें ये गलत हुआ कि कोई किसान नहीं लिया गया। क्योंकि किसानों की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं लिया गया, क्योंकि अगर कोई नुमाइंदा होता तो वो एक्चुअल रेट्स के ऊपर बहस करते। बोलते कि ये हमें रेट ये मिल रहे हैं, ना कि ये। तो बिल्कुल। इससे कंप्यूटेशन ज़्यादा रियलिस्टिक होती है और ज़्यादा किसानों के लिए फ़ेवर में होती है और ये हो सकता था कि ये मीटिंग शायद कल ही खत्म हो जाती है, अगर ये स्टेप पहले लिया जाता। बिल्कुल। अमित, जो बकाया राशि को लेकर के आश्वासन किसानों को मिला है कि अगर आपका प्राइवेट मिल का बकाया है तो उसका 15 दिन के अंदर भुगतान हो जाएगा, सहकारी है तो 10 दिन के अंदर उसका भुगतान करवा दिया जाएगा। क्या लगता है आपको किसान, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि अभी आश्वस्त हैं, तो क्या आगे भी ये फैसला कंटिन्यू रहेगा किसानों का, क्योंकि धरना प्रदर्शन लेकिन वो अभी लगातार जारी रखने वाले हैं? देखिए, किसानों की तरफ से धरना लगातार चलता रहेगा। उन्होंने एक बात क्लियर कर दी है कि जब तक हमारी पेंडिंग अमाउंट नहीं आती है, तब तक हम लोग प्रदर्शन पे लगे रहेंगे, हम रास्ता नहीं खोलेंगे। डिस्कशंस बहुत हो चुकी हैं, वो कहते हैं कि लगातार मीटिंग्स होती है और मीटिंग में कोई हल नहीं निकलता है, सिर्फ आश्वासन देके उनको वापस भेज दिया जाता है। तो अब किसानों ने एक फैसला लिया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हम तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे। तो कहीं न कहीं सरकार के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि जब तक सरकार अभी उनके 2 चीज़ें हो गई। एक तो पहले उनके जो रेट्स देने हैं, उसको लेके, क्योंकि कहीं न कहीं सुखजिंदर आप बोल चुके हैं कि रेट सिर्फ़ और सिर्फ़ किसानों को देख के नहीं दिए जा सकते, क्योंकि कहीं न कहीं प्राइवेट मिल्स भी देखने हैं। क्योंकि अगर एक तरफ से उनको सीधे तौर पे 400 या जितना भी रेट बनता है वो दे दिया जाता है, तो क्या शुगर मिल्स चल पाएँगी? क्या वो इतना बोझ सहन कर पाएँगी? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को भी स्टेबल रखना है, इंडस्ट्री भी चलती रखनी है। तो एक ये फैक्टर ज़रूर कंसिडर करना पड़ता है और उनको भी ये देखना होगा कि शुगर मिल चलती रहे।
क्योंकि अगर शुगर मिल ही बंद हो जाती है तो फिर गन्ना किसान जाएंगे कहाँ? क्यों ना, और लॉन्ग टर्म भी देखना होगा। वहीं बकाया राशि के ऊपर जरूर आश्वासन है और कहीं ना कहीं किसान भी आश्वस्त है कि जल्द से जल्द जो बकाया राशि है वो उनको मिल जाएगी, कि जहां से करीब 150 करोड़ सरकार की तरफ से है, वही 55 करोड़ जो सरकारी प्राइवेट पड़े हैं, तो उन सबको उम्मीद है कि उनको जल्द से जल्द वो पैसा मिल जाएगा। क्योंकि कहीं नहीं, जो ज्यादा पैसा है वो सरकारी तरफ से पेंडिंग है और सरकार की तरफ से अगर आश्वासन आ चुका है तो वो पैसा उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द मिल जाएगा। बिल्कुल अमित, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित कुमार संवाददाता चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए थे। सीधे तौर पर यकीनन एक बात जो निकलकर सामने आ रही वो ये है कि जिस तरीके से किसानों की बकाया पर अब बात बनी है, आगे भी आंदोलन लगातार जारी रहने वाला, और उसका मुख्य कारण ये रहेगा कि अभी जब तक उनके पास वो पूरा अमाउंट नहीं आ जाता